Hello everyone. With my part 12 video of the same chapter class 9 matter in our surroundings, I am again with you. In this part we will discuss a very special type of interconversion of the state of matter. This is the special type. In our previous videos, we have seen the different type of interconversion of the states of matter. We have discussed much in our previous video, that is melting, that is vaporization, condensation, and again solidification or freezing. But this is a special conversion because in this case a solid is not changed to liquid and then gases. There are some special types of solids which directly changes to the liquid state. Which directly changes to the gaseous state. यार इसको बंद तो कर दिया. So these changes are the special because in this case a solid directly changes into the gaseous state on heating, and a gas is directly changed to the solid state on cooling without undergoing the liquid state. मतलब liquid state नहीं बनती है, directly solid to gas and directly gas to solid. So this special type of interconversion is known as sublimation. Sublimation. देखिए, as I have written here at the board, what is the sublimation? Sublimation is the direct conversion of solid state to vapor state on heating and vice versa. That means opposite, without undergoing the liquid state. So this process is known as the sublimation. अब इसकी एक्टिविटी मैं आपको समझाऊं उससे पहले द क्वेश्चन इज, ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं, which type of solids are there which undergo the process of sublimation. So आपको याद होगा, I have in my previous video once explained you the two type of liquids, volatile and non-volatile. So there are two type of impurities which are already mixed in the solids. These impurities are of two types. ये impurities दो तरह की होती हैं, that is the volatile and non-volatile. Volatile वो जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल वो जो ज़्यादा टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में चेंज होते हैं. याद आ गया होगा आपको. So which type of substances undergo the process of sublimation? Only those substances whose vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure much before their concerned melting points undergo sublimation. ऐसे substances जिनका वेपर प्रेशर, सॉलिड को हम हीट करते हैं, गर्म होने लगता है, उसमें से वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनका वेपर प्रेशर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. कितना बताया था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल. तो उनके जो वेपर का प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट.
उस सॉलिड के जो मेल्ट होने का जो पॉइंट है उससे पहले ही, मतलब सॉलिड मेल्ट नहीं हो पाता है, उससे पहले ही उससे निकलने वाली वेपर का प्रेशर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है तो सॉलिड मेल्ट ना होकर के डायरेक्टली अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है? हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं, उसमें से वेपर्स निकलेंगे, गर्म होगा, हीट निकलेगी, तो उसके जो वेपर्स निकल रहे हैं उसके जो वेपर प्रेशर है वो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। किससे पहले? उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही। तो ऐसे ही सब्सटेंस अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। एग्जाम्पल इज ड्राई आइस। Dry ice means solid carbon dioxide gas. It sublimes at very low temperature. Look at -78 डिग्री सेल्सियस। अभी बात करेंगे ड्राई आइस के बारे में। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नोन एज ड्राई आइस। ये डायरेक्टली लिक्विड में चेंज ना हो करके डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब आइए इसकी एक्टिविटी की बात करते हैं। हमने क्या किया, एक ये चाइना डिश ली, स्टैंड पर रखा, बंसन बर्नर की हेल्प ली, इसमें हमने इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स डाले, मिक्सचर डाला हमने। इम्प्योर है अमोनियम क्लोराइड। जैसे कि सब्लिमेशन के अंदर, सब्लिमेशन में जो जो सॉलिड्स सबलाइम होते हैं, आई हैव रिटन हियर सम एग्जांपल्स। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर जो यूज करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स टॉयलेट्स में पड़ी रहती हैं, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड एंड आयोडीन एक्सेट्रा with the dry ice. So these are few examples of those solids which undergo the process of sublimation. इसमें से हमने एग्जाम्पल लिया है ये NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का। अब अमोनियम क्लोराइड ये इम्प्योर है, दैट मीन्स इसमें कुछ और सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। इसमें दो तरह के सब्सटेंसेस हैं। अमोनियम क्लोराइड तो वोलेटाइल है, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो हैं नॉन वोलेटाइल। अब आप इनके मीनिंग समझ ही चुके हैं। वोलेटाइल है अमोनियम क्लोराइड, जो कि डायरेक्टली चेंज हो जाएगी गैसेज स्टेट में, और जो इम्प्योर है, इम्प्योरिटीज मिली हुई है इसके अंदर, अशुद्धता, वो नॉन वोलेटाइल है, वो गैस में चेंज नहीं होगी, वो नीचे रह जाएगी। हमने क्या किया, इस चाइना डिश में इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड लिया, एक इन्वर्टेड फनल, एक फनल ये कीप है उल्टी करके हमने इसको ढक के रख दिया इस पे, ग्लास की बनी हुई, और इसके माउथ को हमने कॉटन प्लग से सील कर दिया जिससे कि ये वेपर्स बाहर ना जा पाए। हीट करना शुरू किया स्लोली। हम क्या देखते हैं कि इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है वो, क्योंकि वोलेटाइल है, टेम्परेचर पर ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, इसके जो गैस के वेपर्स हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जब काफी वेपर्स यहाँ इकट्ठे हो गए, हमने क्या किया, बर्नर को ऑफ कर दिया। देखते क्या है कि यही वेपर्स जैसे ही ठंडे हो जाते हैं तो इसकी वॉल पर यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ये दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक स्पॉट। सो दीज आर द सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड के रूप में चेंज हो गई। पहले गैस से डायरेक्टली किस में चेंज हुई है बेटा, ये वेपर्स थे, वेपर्स चेंज हुई डायरेक्टली सॉलिड में। दैट मीन्स यहाँ सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ, और जो इम्प्योरिटी थी वो इस प्लेट में नीचे बची रह जाती है, क्योंकि वो कैसी थी, दैट वाज नॉन वोलेटाइल, वो इतने टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हो सकती थी। ये मेल्ट होने से पहले ही इसके अंदर से NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड थी वो वोलेटाइल है, वो वेपर बन के बाहर निकल गई, और टेम्परेचर को हमने ठंडा किया तो ये यहाँ पर इसकी वॉल पर डिपॉजिट हो गई।
सो दिस इज एन एक्टिविटी टू शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसके लिए वोलेटाइल का होना बहुत जरूरी है। सो सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग, इसका अपोजिट भी, विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। ऐसा ही केस कैम्फर के साथ है, नेपथलीन बॉल के साथ है। आप जो नेपथलीन की बॉल्स हैं टॉयलेट्स में पड़ी रहती हैं या घरों में हम लोग कपड़ों में रख देते हैं, हम देखते क्या है कि स्मेल्स तो आती रहती है, उसकी स्मेल आती रहती है, और हम जब अगले साल अपने बेड को खोलते हैं कपड़े निकालने के लिए, वुलन क्लोथ्स को, तो जो जो वो आपने जो बॉल्स डाली थी छोटी छोटी, वो उनका जो अमाउंट है थोड़ा सा कम हो जाता है, छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों, कहाँ गया वो सारा? क्योंकि वो जो है नेपथलीन जो बॉल्स थी वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, थोड़ी बहुत हीट मिलती रही उसको साल भर, और वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो गई, जिसकी स्मेल कपड़ों में आती रहती है। सो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। क्लियर? आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट इज sublimation, then examples, and this is the activity shown in your NCERT book. Clear है बेटा? Clear. So now this is the whole about the interconversion of the state, but sublimation is a special type of interchange. ठीक है? That means आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सब्लिमेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सब्लिमेशन अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट, और gaseous state directly changes to solid state. How? On heating and on cooling. Clear? And this process is known as the sublimation. इसी को हम कहते हैं sublimation, a special type of conversion. Clear है? इसको भी आप नोट कीजिएगा। अब हम एक बात और, सिर्फ वही सब्सटेंस सबलाइम होते हैं जिनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है कब? उसके मेल्ट होने से पहले ही, उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही। दीज आर एग्जांपल्स: ड्राई आइस, नेपथलीन बॉल्स, कैम्फर, anthracene, benzoic acid, ammonium chloride, iodine, etc. Now one more thing for the dry ice. Dry ice. First is, what is the dry ice? ड्राई आइस वास्तव में है क्या? ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है? इन जनरल होता क्या है? इन जनरल सामान्य रूप से गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड, changes into liquid and then solid। सामान्यतः तो यही होता है। कब? टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज्ड एंड प्रेशर इंक्रीज्ड। प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं। तो इन जनरल जो है
जो गैसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट में। बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन इट, प्रेशर बढ़ाने पर इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, stored under very high pressure, very high pressure at room temperature। टेम्परेचर कैसा रहता है? रूम टेम्परेचर पर। हमने टेम्परेचर भी कम कर दिया। रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं इसका, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में इसको स्टोर करके रखा जाता है, और जैसे रूम टेम्परेचर, और जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करना शुरू करते हैं ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। सो इसीलिए हम इसको जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ड्राई आइस को लेते हैं, इट डज नॉट वेट द सरफेस, इट डज नॉट वेट द सरफेस। ये सरफेस को गीला नहीं करती है जनरल आइस की तरह, अनलाइक द आइस, जो हमारी सामान्य आइस है, जो बर्फ है, उसकी तरह सरफेस गीला नहीं करती है। व्हाई? बिकॉज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ इट सबलाइम्स। ये जो है सबलाइम होती है, देयरफॉर इट डज नॉट वेट द सरफेस। किसके यूज आती है? जनरली इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, चीजों को रेफ्रिजरेंट, ठंडा करने के काम में आती है। ठीक है, सो रेफ्रिजरेंट के रूप में ये यूज होती है। एंड मार्केट में, इन मार्केट में इट इज branded the name ड्राई कोल्ड। ड्राई कोल्ड के नाम से ये बाजार में ब्रांडेड है, बेची जाती है। सो ड्राई आइस also undergoes it also sublimes, it does not wet the surface because it sublimes, and it is stored under the very high pressure. So this is whole about the dry ice and sublimation. ड्राई आइस के अलावा जो है नेपथलीन का एग्जाम्पल्स आपको हमने दिया, कपूर का भी एग्जाम्पल, कैम्फर सेम है सबलाइम के लिए। बस हमें ये याद रखना है कि विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन। सिंपल आंसर, when the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure before the melting point। उस सॉलिड के मेल्ट होने से पहले उसके वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सो वो डायरेक्टली सबलाइम हो जाती हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। सो इट इज होल अबाउट दिस पार्ट 12 वीडियो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss one more process, a special process, it is known as the evaporation। तो हम evaporation को जानेंगे, समझेंगे, और किन किन फैक्टर्स पर evaporation डिपेंड करता है वो भी हम जानेंगे और समझेंगे। सो अब तक के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच, लाइक द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।